بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مشین چلاتے چلاتے میرے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے۔ باہر پھر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیوار گیر گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ میں نے سلائی مشین ایک طرف رکھی اور تکیے کے نیچے پڑی ہوئی ٹارچ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی مگر ذہن بالکل خالی تھا۔ میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہی کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں نے سامنے موجود شخص کو دیکھا اور کانپ کر رہ گئی۔ میں نے زور سے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میرا نام نورین ہے اور میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں۔ میرا تعلق کے کام سے غریب گھرانے سے ہے۔ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں پر شاید ہی کوئی اور خاندان ہمارے جتنا غریب ہو، اسی لیے لوگ ترس کھا کر ہمیں اکثر اپنی استعمال شدہ چیزیں اور کپڑے وغیرہ دے جایا کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی سے کوئی بھی چیز لوں مگر اماں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اماں اپنی غربت کا راگ سب کے سامنے الاپنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بہت کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اور اماں نے یہ روش میرے والد کے انتقال کے بعد اختیار کی۔ میرے والد اگرچہ ایک دہاڑی دار مزدور تھے مگر بے حد خوددار اور عزت نفس والے انسان تھے۔ ان کا انتقال میری پیدائش کے چند دن بعد تب ہوا تھا جب وہ ایک عمارت کی تعمیر کے دوران اینٹیں اٹھا کر اوپر پہنچا رہے تھے۔ نہ جانے کب اور کیسے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ کئی فٹ کی بلندی سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد جہاں وہ گرے تھے وہیں پر ایک طرف پڑی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر سے کچھ اینٹیں بھی ان کے پاس گریں، اور ایک اینٹ نے ان کے سر پر گر کر انہیں اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ اس وقت بابا کی عمر کوئی 30-35 سال کے قریب ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ اماں ادھر ادھر کام کر کے گھر کے خرچے پورے کرتی تھی اور تب سے ہی ان کی زندگی میں خود پر گزرنے والی مصیبتیں میں سنا کرتی تھی۔ دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے والی عادت پروان چڑھی تھی۔ اماں تو کبھی مجھے اتنی تفصیل سے نہیں بتاتی تھی، لیکن آپا نے مجھے بہت اصرار کے بعد یہ ساری باتیں بتائی تھی، جو اس وقت 10 برس کی تھی جب بابا کا انتقال ہوا تھا۔ اب گھر میں ہم بس 3 لوگ ہی تھے جو کسی بھی طرح سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہے تھے۔ بابا کی موت کا سب سے بڑا نقصان مجھے ہوا تھا کہ ایک تو میں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئی تھی، اور دوسرے اماں سمیت سارے قصبے کے لوگوں نے مجھے منحوس اور سبز قدم سمجھتے ہوئے انہی ناموں سے مشہور کر دیا تھا۔ اماں تو علیہ اعلان کہتی تھی کہ میں آتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی تھی۔ وہ آپا سے تو بہت محبت سے پیش آتی مگر میرے لیے ان کے پاس نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ ان کے اسی سلوک سے دل برداشتہ ہو کر میں اکثر کسی کونے خدرے میں چھپ کر رونے لگتی۔ ایسے میں بس ایک آپا ہی تھی جو مجھے اپنی گود میں سمیٹ لیا کرتی تھی، میرے آنسو پوچھتی اور مجھے تسلی دے کر اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ساری دنیا میں اگر کوئی بہت زیادہ عزیز اور پیارا تھا تو وہ بس نسیم آپا ہی تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے میں نے اسکول کا منہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہی مجھے گھر پر ہی اپنی پرانی کتابوں سے بس پڑھاتی رہتی تھی، لیکن وہ خود ہی 8ویں کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکی، اس لیے بس اتنا ہی پڑھا سکی۔ اس کے بعد وہ بھی اماں کی طرح ہی کام کرنے لگی۔ آپ ہی کے ادب و اخلاق سے متاثر ہو کر ہماری ایک پڑوسن نے انہیں کپڑے سلائی کرنا سکھا دیے۔ جب وہ سیکھ چکی تو انہوں نے اپنی ایک پرانی مشین بھی انہیں دے دی۔ اس طرح ان کے لیے کافی سہولت ہو گئی تھی اور جلد ہی انہیں سلائی کے لیے کپڑے ملنا شروع ہو گئے۔ نسیم آپی نے مجھے بھی کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی کا کام کرنا سکھا دیا۔ اس طرح کم سے کم میں اپنے خرچے پورے کرنے کے قابل بن گئی، لیکن ہم دونوں کے دن رات محنت کے باوجود ابھی تک ہمارے گھر کے حالات نہیں سدھرے تھے، کیونکہ ایک تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور دوسرا ہمیں اپنی محنت کا صحیح معاوضہ بھی نہیں ملتا تھا۔ قصبے کی عورتیں کپڑوں کے تو نئے نئے ڈیزائن بنوایا کرتی تھی اور اس کے باوجود بار بار نقص بھی نکالتی رہتی، مگر پیسے دیتے وقت ان کا ہاتھ بہت تنگ ہو جاتا۔ بہت کم معاوضہ دیتی تھی، وہ بھی کئی بار تقاضا کرنے کے بعد۔ اس لیے بھی ہمارے حالات جوں کے توں ہی تھے اور اماں بھی اسی طرح کام کیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کچھ کپڑے موجود تھے۔ میں اس وقت ایک کتاب اٹھائے پڑھ رہی تھی اور نسیم آپی مشین کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر شاپر ایک طرف رکھا اور خود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ارے نوری،
जा ज़रा पानी का गिलास तो भर के ले आ, बर्तन धो धो कर हाथ ही टूट गए हैं आज तो। अम्मा ने मुझे कहा तो मैं किताब एक तरफ रख कर उठ गई और पानी का गिलास भरकर अम्मा को थमा दिया, जिसने एक ही सांस में वो खाली कर दिया। मैंने खाली गिलास को वापस अपनी जगह पर रखा और दोबारा किताब उठा ली। आपी ने मशीन के पुर्जों से उलझते हुए पूछा, अम्मा तनख्वाह मिल गई? अम्मा ने बेजारी से कहा, कहाँ, वो कहती हैं कि अभी उनके मियाँ को तनख्वाह नहीं मिलेगी, मिलेगी तो देंगी। आपी ने उन्हें परेशानी से देखते हुए कहा, पर अम्मा घर में तो सारा राशन भी खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा आटा और चाय की पत्ती रह गई है, कल तक ही चलेगा बस। अम्मा ने परेशानी से उसे देखा, फिर खामोशी से अंदर चली गई। मगरिब की अजान हुई तो आपी ने थोड़ी देर बाद चादर ओढ़ी और बाहर निकलने लगी। मैंने हैरत से पूछा, आपी इस वक्त कहाँ जा रही है? आपी ने कहा, ज़रा दुकान तक जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। मैं समझ गई थी कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाले होंगे ताकि सौदा सल्फ ले सके, इसलिए खामोश होकर बैठ गई। काफ़ी देर हो गई थी, मैं खाना बनाने के लिए बैठ गई। आटा गूंथकर चंद रोटियां लगाई और फिर किताब उठा ली। आपी अभी तक नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद मोहल्ले में अपनी किसी सहेली से मिलने गई होगी, तभी तो इतनी देर हो गई है, और ऐसा अक्सर ही होता था, इसीलिए मुझे कोई ख़ास परेशानी लाहक नहीं हुई। लेकिन जब आधा घंटा मज़ीद गुजर गया तो मुझे तो फिक्र होने लगी। इतनी देर तक तो आपी घर से बाहर नहीं रहा करती थी, वो भी रात को। मैं बेचैनी से टहलने लगी। मज़ीद 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने अम्मा को जाकर जगाया तो वो गुस्सा करने लगी। मनहूस, 2 घड़ी कमर सीधी करने के लिए लेटूं तो भी तुझे तकलीफ़ होने लगती है। क्या कयामत टूट पड़ी है जो 5 मिनट सब्र नहीं हो रहा था तुझसे? मैंने रूहान सी आवाज़ में कहा, अम्मा आपी मगरिब की अजान के बाद गई थी और अब तक वापस नहीं आई, अभी तो इशा की नमाज होने वाली है। अम्मा झट से उठकर बैठ गई और होल कर सीने पर हाथ रखते हुए बोली, या अल्लाह खैर, कहाँ गई मेरी बच्ची, तुझे कुछ बता कर गई है? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा था उनको जाते हुए देखकर, बस इतना कह के गई थी कि दुकान तक जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अम्मा ने घबराते हुए उठकर खड़े होते हुए लरुस्ती आवाज़ में कहा, वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि इतनी देर तक दुकान पर खड़ी रहे। मैं देखती हूँ जाकर, हो सकता है किसी सहेली की तरफ ही चली गई हो, लेकिन तू मत जाना कहीं, मैं ढूंढती उसे जाकर। अम्मा ने ये कहकर दुपट्टा लिया और बाहर चली गई। मैं बेकरारी से दोनों का इंतज़ार करते हुए सहन में टहलने लगी। कुछ देर बाद अम्मा को अकेले वापस आता देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पूछा, अम्मा आप अकेली क्यों आई हैं? आप ही कहाँ हैं? अम्मा बहुत टूटी और शिकस्त खोरदा लग रही थी। वो चारपाई पर बैठकर घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। मेरा दिल भी किसी अनजाने खदशे से धड़कने लगा। न जाने अम्मा क्यों रो रही थी। और आप ही? मैंने दहशत ज़दा होकर अम्मा को झिंझोड़ कर रख दिया और दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई, अम्मा बताओ ना, कहाँ है आप ही? और आप क्यों रो रही हैं? खुदा के लिए बताएं, वरना डर से मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा ने बहती आंखों से मुझे देखकर कहा, वो नहीं है नूरी, दुकान पर तो वो गई ही नहीं। बाकी भी बहाने बहाने से सारे करीबी घरों में पता कर लिया है, उसकी सहेलियों से भी पूछ आई हूँ, पर वो तो कहीं भी नहीं है। न जाने कहाँ चली गई हमारा मुंह काला करके। मैं सुन सी खड़ी अम्मा को देखती रही। ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर आप ही चुपचाप कहाँ गई? अम्मा तो बस रोई जा रही थी। खुद को बेबस महसूस करके मेरी भी सिसकियाँ निकल गईं। तो अम्मा ने मेरा मुंह दबा दिया। खबरदार नूरी, किसी को भी पता ना चल पाए कि नसीम गायब हो गई है, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कहकर उन्होंने मुंह से हाथ हटा लिया। तो मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा कब तक और कैसे छुपाएंगे? आप ही का मिलना तब मुश्किल ही नजर आ रहा है। न जाने कहाँ चली गई हैं। वो लोग तो सवाल पूछेंगे अम्मा, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? अम्मा खामोश हो गई और मज़ीद बात करने के लिए अब कुछ था भी नहीं, इसलिए मैंने भी चुपचाप चादर ओढ़ ली। वो सारी रात हम दोनों जागते रहे और आप ही को याद करके रोते रहे। सुबह हो गई और साथ ही हमारे दिलों में जो मोहम से उम्मीद का चिराग रोशन था कि शायद नसीम आप ही लौट आए, वो भी बुझ गया।
आपी शायद घर के ना बदलने वाले हालात से तंग आकर किसी और देश चली गई थी। उस दिन अम्मा भी काम पर नहीं गई थी। आपी की एक दिन की गुमशुदगी ने उन्हें एक दिन में बरसों की बीमार बना दिया था। उसी चिड़चिड़ेपन में वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया करती। चंद दिन तो यूं ही गुजर गए। मिलने जुलने वालों से अम्मा ने कह दिया था कि आपी को उन्होंने कराची भेज दिया है, जहाँ एक जगह उन्हें काम मिल गया है। लोगों को कुछ शक तो हुआ था, मगर किसे पड़ी थी कि तफ्तीश करता, इसलिए उन्होंने हमारे हाल पर हमें छोड़ दिया। मुझे अब आपी के लौट आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि नूरी, चल साईं करीम शाह के दरबार पर चलते हैं, वो बिगड़े बनाने वाले, क्या पता नसीम को भी घर का रास्ता दिखा दें। मैंने अफसोस से उन्हें देखकर कहा, कैसी बातें करती है अम्मा, वहाँ जाने से क्या होगा। अम्मा ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर जा मनूस, मुझे पता तुझे उन पर यकीन नहीं है, मगर मुझे उन पर पूरा एतकाद है। और देख लेना, मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। तू जल्दी से चादर ले आ, मेरे साथ चल, तुझे मैं अब घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। कोई चारा ना पाकर मैं भी उठ खड़ी हुई और चादर लेकर अम्मा के साथ दरबार पर जाने के लिए तैयार हो गई। घर को ताला लगाकर हम लोग बाहर निकल आए। साईं करम शाह का दरबार ज्यादा दूर नहीं था। कस्बे से बाहर खेतों के दरमियान ये खानका वाक़ थी, जहाँ पर अब सुबह शाम रश हुआ करता था। चंद साल पहले इस जगह पर सिर्फ एक शिकस्ता हाल कब्र थी, जिस पर लगे कुतबे पर मीठे मीठे लफ्ज़ों में साईं करम शाह लिखा होता था। मगर अब वहाँ पर एक पुख्ता इमारत मौजूद थी, जिसकी पेशानी पर बड़े हरूफ में दरबार साईं करम शाह लिखा हुआ था। मज़ार के अंदर सुल्तान साईं नाम के पीर साहब भी बैठे रहते थे और उनके गिर्द दो खिदमतगार हर वक्त उनके कंधे और पैर दबाते रहते। वो भी मौजूद होते थे, हर आने जाने वाले को घूर कर देखा करते थे। सुल्तान साईं के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं जानता था। ये मज़ार भी चूँकि उसी ने बनवाया था, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। मैं अब तक सिर्फ इस सब के बारे में सुनती रही थी। आज यहाँ पर कदम रखा तो अंदाज़ा हुआ कि ये सुल्तान साईं वाकई में यहाँ किसी सुल्तान की तरह राज करता है। वो पैर पसार कर दीवार से टेक लगाए, आंखें मूंधे, एक हाथ में तस्बीह लिए बैठा था और उसके दोनों खादिम उसकी मुट्ठी गर्म करने में मसरूफ़ थे। हमसे पहले भी उसके सामने 5-6 औरतें बैठी थी। मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ने के बाद वो बाहर निकलती और सुल्तान साईं के सामने झुककर उसके पैर चूमती, फिर अपनी एक हाजत बताती। सुल्तान साईं गौर से उसकी बात सुनता, फिर किसी को पानी की बोतल पर फूंक मार कर देता, किसी को मिठाई पर, किसी को मिर्चों पर और किसी के तावीज़ लिखने लगता। सादा सी देहाती औरतें अपने पल्लू से बांधे रुपए वहाँ पर मौजूद चंदे के बक्से में डाल देती और फिर उल्टे कदमों रवाना हो जाती। हम दोनों भी मज़ार के अंदर दाखिल हो गए थे। कब्र के ऊपर सब्ज़ झंडियों की कतारें सजाई गई थी। हम दोनों ने फातिहा पढ़ी और फिर कब्र की पायंतनी की तरफ बैठ गई। लेकिन बैठते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ गई। एक अजीब सी हैबत से दिल पर तारी होने लगी। हवा का एक तेज झोंका मेरे सर से दुपट्टा उतार गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कोई है। वो जो कोई भी था, उसकी आंखें गहरी नीली थी, समुंदर की नीली आंखें जिनमें सुर्खी खुली हुई थी। उसके चेहरे के मजीद नकूश देखकर मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो बहुत धुंधले से थे, जैसे धुएं के पार से दिखाई दे रही हूँ। बस उसकी आंखें वाज़े हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ गायब हो गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं दम बखूद सी बैठी रह गई। क्या था वो? बल्कि ये कहना चाहिए कि वो कौन था और मुझे इस तरह से क्यों नजर आया था। अम्मा कब्र के पास से सर झुकाए सिसकियाँ लेते हुए धीमी सी आवाज़ में कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं गुमसुम इर्द गिर्द के मनाजिर को खाली खाली नज़रों से देख रही थी। अम्मा ने क्या कहा, क्या दुआ मांगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बस उन नीली आंखों के तस्वर में गुम थी, जो ना जाने हकीकत थी या तखय्युल का करिश्मा। अम्मा ने मुझे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने गुस्से से मेरा बाजू झिंझोड़ कर कहा, यहाँ पर तू सोने आई है क्या? इतनी आवाज़ें दे रही हूँ, सुनाई तो नहीं दे रहा तुझे? मैंने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ी चाहती हूँ अम्मा, ध्यान की ओर था मेरा। अम्मा ने इस तरह गुस्से से देखते हुए मुझे कहा, हाँ अब बस यही करना रह गया है। एक का ध्यान भटका तो भाग गए किसी के साथ, अब तेरा भी भटकने लगा तो तू भी निकल जाना किसी रात। मैं तड़प कर उठ खड़ी हुई, इससे पहले कि अम्मा और कुछ कहती। अम्मा बाहर निकलकर सुल्तान साईं के सामने पहुंच गई। मेरे अल्फाज हलक में अटक गए।
अम्मा ने सुल्तान साईं के पैरों को चूम कर उनसे कहा, साईं आप पर तो सब कुछ रोशन है, मेरी बेटी के लिए खैर की दुआ दें। सुल्तान साईं ने आंखें खोल दी और एक सरसरी नज़र अम्मा पर डालकर कहा, घबरा मत माई, सब खैर होगी तेरी लड़की के लिए, हम दुआ करेंगे, लेकिन फ़कीरों को खुश करने के लिए नजराना भी देती जाओ। अम्मा ने आंसू पूछते पल्लू खोला और दुपट्टे में बंधा 500 का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर नजराने की संदूकची में डाल दिया। सुल्तान साईं की नज़रें मुझ पर जमी थी, उसकी नज़रों में सिर्फ खबासत थी। मैं सख्त बेचैन होते इधर उधर देखते अम्मा के यहाँ से चलने का इंतज़ार करने लगी। अम्मा उठी और मुझे भी सुल्तान साईं के पैर चूमने का इशारा किया तो आहन कराहन मुझे भी आगे बढ़ना पड़ा। मैंने सुल्तान साईं के काले और गंदे मिट्टी से लुथड़े पैर देखे तो उन्हें चूमने के ख्याल से अबकाई आने लगी, इसलिए मैंने झुककर उसके पैरों को अपनी उंगलियों से ज़रा सा छुआ और फ़ौरन पीछे हट गई। सुल्तान साईं ने नागवारी से मुझे देखा, क्योंकि वहाँ आने वाली औरतों में से शायद एक मैं थी जिसने सुल्तान के पैरों को ना चूमने की गुस्ताखी की थी। मुझे वो कहीं से भी अल्लाह वाला पीर या फ़कीर किस्म का बंदा नज़र नहीं आ रहा था। वो हर औरत को गौर से देखता, उसकी आंखों में हैवानी और भूख नज़र आती। मुझे गौर से देखते उसने अम्मा से कहा, माई 2 दिन बाद जुमेरात है, उस दिन मैं ख़ास तेरे लिए दुआ मांगूंगा और तावीज़ भी दूंगा। जुमेरात को अपनी बेटी को साथ लेकर आ जाना। अम्मा खुशी से खिल उठी। उन्होंने कहा, ठीक है साईं जी, मैं आ जाऊंगी। अम्मा से पहले ही मैं आगे बढ़ गई। मुझे उस शख्स की नज़रें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मा बहुत पुरुमीद थी, उन्हें यकीन था कि नसीम आपी अब ज़रूर घर आएंगी, मगर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, बल्कि मुझे तो ये सुल्तान साईं भी कोई ढोंगी पीर लग रहा था। खैर हम लोग मज़ार के अहाते से बाहर निकल आए। मैं अम्मा के पीछे पीछे जा रही थी। चलते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया है। मैंने इस बात को अपना वहम समझते अपना बाजू झटका, मगर गिरफ्त बदस्तूर कायम रही। मुझे तो अब डर लगने लगा था, लेकिन चंद लम्हों बाद यह एहसास ख़त्म हो गया। मैं भी पुरसुकून हो गई। अम्मा की वैसे ही मुझसे नहीं बनती थी, इसलिए घर पहुंचकर भी हम दोनों के दरमियान कोई ख़ास बात नहीं हुई और मैं अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि अम्मा बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। मैं अपनी चारपाई पर आकर लेटे आपी के बारे में सोचने लगी। न जाने वो कहाँ थी, किस हाल में थी। अम्मा ने कहा था कि वो किसी के साथ भाग गई हैं, मगर आपी की बातों से तो कभी नहीं लगा था कि ऐसा कोई चक्कर था। अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे तो इस बारे में कुछ न कुछ ज़रूर बताती। यूं ही सोचते मेरी आंखें भारी होने लगी। नीम गनूदगी के आलम में मुझे महसूस हुआ जैसे चारपाई पर मेरे अलावा कोई मौजूद है। कोई अनजान शख्स मेरे पहलू में था और उसके होंठों की तपश मैं चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। मैं खामोश साकित पड़ी रही। दिल था कि अलग में आ रहा था। चंद लम्हे बाद मैं पूरी तरह बेदार हो गई। मैंने झटके से उछलकर बैठते हुए आसपास निगाह डाली, मगर वहाँ मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। फिर कुछ देर पहले जो हुआ वो क्या था? अजीब उलझन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बदहवासी में उठकर खड़ी हो गई और बाहर निकल आई। अम्मा बरामदे में सो रही थी। मेरा दिल चाहा कि उन्हें कुछ देर पहले होने वाले वाक़े के बारे में बता दूं, मगर शर्म की वजह से कुछ भी नहीं कह सकी। अब अंदर जाते हुए भी मुझे डर लग रहा था, इसलिए अम्मा की चारपाई पर पायंते की तरफ बैठ गई। मेरे बैठने से वो चौंक कर जाग गई और उठते हुए बोली, क्या वक्त हुआ है नूरी? मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, रात हो रही है अम्मा। उन्होंने सीधी होकर बैठते गौर से देखा और पूछने लगी, तुझे क्या हुआ है? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस सोते में कोई बुरा ख्वाब देखा था इसीलिए डर गई। अम्मा के दिल में न जाने क्या आई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों डर लग रहा है तुझे? मैं हूं ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं तेरे पास। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और संभालने के बाद अम्मा ने पहली बार मुझे इस तरह से इतने प्यार से गले लगाया था, वरना तो हर वक्त झिड़कती और मनूस मनूस कहकर गिरदान करते हुए बुरा भला कहती। थोड़ी देर बाद वो मुझसे अलग हुई तो मैंने अपने आंसू खुश करते हुए उठकर किचन में जाकर आटा गूंदने की कोशिश करने लगी। दिन ढल रहा था, रात हो गई थी तो मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज सालन के नाम पर घर में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ी प्याज काटी, उस पर नमक मिर्च छिड़क कर बाहर ले आई। अम्मा चारपाई पर बैठी जाने क्या सोच रही थी। मैंने थाली दूसरी चारपाई पर रखते हुए उसे आवाज़ दी, अम्मा आ जाओ खाना खा ले। अम्मा ने पूछा, क्या बनाया है आज तूने? मैंने कहा, आज प्याज के सिवा कुछ भी नहीं है अम्मा, उस पर नमक छिड़क कर लाई हूँ। ये कहते हुए बेख्तियार मेरा दिल चाहा, काश आज कोई अच्छी सी चीज़ होती तो बना लेती। मैं पानी लेने के लिए दोबारा अंदर चली गई,
बाहर आई तो अम्मा को हैरत से खाने की चीज़ों को घूरते पाया और उस वक्त मैं खुद दम बखूद रह गई। जब कुछ कटी प्याज की जगह मैंने तले हुए गोश्त के पार्चे देखे। अम्मा ने मुझे देखते हुए अजीब आवाज़ में कहा, तूने तो कहा था कि सिर्फ प्याज है, फिर ये सब कहाँ से आया, किसने भेजा है? मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो खुद हैरत ज़दा थी कि आखिर ये कैसे और कहाँ से आया। मैंने कहा, पता नहीं अम्मा, कसम से मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ से आए, मैंने तो सिर्फ प्याज काट कर रखी थी। हम दोनों की हैरत तो अपनी जगह पर थी, मगर ये भी हकीकत थी कि कई दिन से हमने ढंग से कोई चीज़ नहीं खाई थी, इसीलिए थोड़ा हिचकिचाने के बाद हम दोनों वो खाने लगी। पेट भरा तो नींद आने लगी। अम्मा अपने कमरे में चली गई और मैंने नसीम बाजी के और अपने मुश्तरका कमरे का रुख किया। मेरे जहन में दोपहर वाला वाक़या बिल्कुल महव हो चुका था, इसलिए आराम से लिहाफ लपेट कर लेट गई और रसाला उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए नज़र एक इश्तिहार पर चली गई। उसमें मॉडल ने बहुत खूबसूरत कंगन पहन रखे थे, मुझे वो बहुत पसंद आए। मैं उस सफ़े पर हाथ रखते बड़ी हसरत से सोचने लगी कि काश मैं भी ऐसा कोई कंगन खरीद सकती। पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरी गोद में गिरी हो। मैं रसाला एक तरफ रखते हुए देखने लगी और मुझे ये देखकर हैरत का शदीद तरीन झटका लगा कि ये वही कंगन था जो मैंने रिसाले में देखा था। मैं फटी फटी आंखों से देखे गई, खुदा जाने ये सब क्या चक्कर था। उसी वक्त किसी की अनजान और सरगोशियाना आवाज़ सुनाई दी, कैसा लगा मेरा तोहफा, पसंद आया तुम्हें? मैं बुरी तरह से उछल पड़ी। ये किसकी आवाज़ थी, कौन बोल रहा था? मैंने दीवाना वार इधर उधर देखा, मगर कमरा तो खाली था। खौफ से पत्ते की तरह कांपते हुए मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजे के दोनों पट सख्ती से बंद हो गए। मैं लरसते हुए बंद दरवाजे को देखने लगी। वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, खामखा की भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा, यहीं बैठ जाओ नूरीन, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मेरी बात के जवाब में उसी पुरस्रार आवाज़ ने उसने कहा, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा नूरीन, लेकिन पहले तुम अपने डर और खौफ से तो निजात हासिल कर लो। मैंने सहमी हुई निगाहों से इर्द गिर्द देख कर पूछा, तुम कौन हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मर्दाना हंसी की आवाज़ गूंजी और फिर उसने कहा, तुम मुझे देखना चाहती हो? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, हाँ। चंद लम्हे तक खामोशी छाई रही, फिर उसने कहा, अब पलट कर देखो। मैंने जल्दी से पलट कर देखा, वो मेरे सामने खड़ा था, वही नीली आंखें जिनमें सुर्खी रची हुई थी। उसके जाहिर होते ही कमरे में एक तेज़ और सहर अंगेज खुशबू फैल गई। मैं दम बखूद सी खड़ी उसे देखती रही। वो बेहद खूबसूरत था, किसी शहजादे जैसा हसीन। मैंने झिझकते हुए चंद कदम उठाए और उसके करीब जाकर रुकी। अब मुझे कोई शुबा नहीं रहा था कि वो कौन है, मगर फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, क्या तुम बताओगे कि तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिन्नज़ादा हूँ, मेरा नाम अरकान है। अरकान? मैंने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। बहुत अजीब और ख़ूबसूरत नाम था। उसे आम इंसानों की तरह बातें करते देखकर अब मेरे अंदर का डर और खौफ बड़ी हद तक कम हो चुका था, इसलिए मैं चारपाई पर बैठ गई और कुछ बेतकल्लफ़ी से उससे बातें करने लगी। मैंने दिलचस्पी से पूछा, अरकान, तुम लोगों की दुनिया कैसी होती है? उसने जवाब दिया, हमारी दुनिया तुम लोगों की दुनिया से बहुत खूबसूरत होती है, इतनी हसीन कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने ताज्जुब से पूछा, तो फिर इतनी हसीन दुनिया के होते हुए तुम यहाँ आए क्यों? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम कर कहा, यहाँ पर तुम हो ना, किसी और वजह की क्या ज़रूरत है? उसकी मोहब्बत पर मैं शर्मा गई। फिर अचानक कुछ ख्याल आया तो मैंने पूछा, जब मैं साईं करम शाह के मज़ार पर गई थी तब मुझे धुएं की शक्ल का कोई नज़र आया था, वो तुम ही थे? उसने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, कब? मैंने कहा, जब मैं वहाँ गई थी तो मज़ार के अंदर। तब मैं पायंते की तरफ बैठते ही मुझे एक लम्हे के लिए सामने कोई बैठा नज़र आया। उसका बाकी वजूद ऐसा था जैसे सफ़ेद धुएं से बना हो, बस उसकी आंखें ही मैं देख सकी थी, और वैसी ही नीली आंखें थी जैसे कि तुम्हारी। जिन्नज़ादा अरकान कुछ परेशान नज़र आ रहा था। उसने मुझसे अलग होते हुए कहा, बस, और कुछ नहीं देखा था तुमने? मैंने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, नहीं तो, और तो कुछ नहीं था। अरकान ने बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलना शुरू किया। उसे परेशान देखकर मैं भी फिक्रमंद हो गई। मैंने उसके करीब आते हुए कहा, क्या बात है अरकान,
तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? क्या वो तुम नहीं थे? अरकान ने रुक कर मुझे देखा और उलझे हुए अंदाज में कहा, नहीं नूरी, वो मैं नहीं था। मैंने तो तुम्हें रास्ते से गुजरते हुए देखा था। मैं रास्ते पर एक दरख्त के ऊपर बैठा था। जब मैंने तुम्हें अपनी अम्मा के साथ गुजरते देखा तो तुम्हें देखते दिलो जान से तुम पर फरीख्ता हो गया। मज़ार के अंदर तो ना मैं पहले कभी गया था, ना मैंने तुम्हें वहाँ कभी देखा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं कि वो कौन था जिसे तुमने देखा। मेरे जिस्म में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई। मैंने अरकान से पूछा, तो फिर वो कौन था? उसने पुरसोच अंदाज में अपनी ठोड़ी खुजाई और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं पता लगा लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अरकान की इस बात पर अचानक ही मुझे ख्याल आया, अरकान, मेरी बड़ी बहन नसीम चंद दिन पहले अचानक गायब हो गई है। वो मगरिब की नमाज के बाद बाहर गई थी और फिर वापस नहीं आई। न जाने कहाँ खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अरकान ने बगौर मेरी बात सुनी और फिर करीब आकर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन का ज़रूर पता लगाऊंगा। उसने मेरी पेशानी चूमी और अपना हाथ छुड़ाते गायब हो गया। मैं परेशान से दोबारा चारपाई पर लेट गई। अरकान से अब मुझे कोई डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो जिसके बारे में अरकान ने लाइल्मी ज़ाहिर की उसके बारे में सोचकर ज़रूर खौफज़दा थी। न जाने कौन था और इस तरह मेरे सामने आने का क्या मकसद था। अरकान ये सुनते ही परेशान क्यों हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ज़हनी उलझावे से तंग आकर मैंने आंखें बंद की और थोड़ी देर में ही मैं गहरी नींद सो गई। सुबह हुई तो मैंने उठकर चाय बनाई। अम्मा भी जाग गई थी। मुझे अरकान की आमद का इंतज़ार था। अम्मा ने मेरी बेचैनी भांपी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है नूरी, इतनी बेकरार क्यों है? सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी कैफियत छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, आप ही के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। अम्मा ने आह भरते हुए चाय का कप नीचे रखकर कहा, पता नहीं बेटा, न जाने कहाँ होगी इस वक्त, किस हाल में होगी। साईं सुल्तान ने तो कहा कि वो तावीज़ देंगे और नसीम मिल जाएगी। न जाने क्या हो गया है, मिलेगी भी या नहीं। अब तो लोगों को भी शक सा हो गया है। कल ही अकबरी बीबी भी पूछ रही थी कि नसीम की कोई खैर खबर मिली या नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या उनको पता चल गया? अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सबसे कहा था कि वो कराची गई है कमाने, मगर अब लगता है सबको पता चल जाएगा। अम्मा की बात पर मैं अफसरदा हो गई, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे सिवाय इंतज़ार के, और वही कर रहे थे। आज जुमेरात की रात थी। अरकान को गए 2 दिन हो गए थे और अब तक उसका पता नहीं चला था। मगरिब की अजान हुई तो अम्मा ने चादर संभालते हुए कहा, चल नूरी, चलकर साईं से तावीज़ ले आते हैं। आज जुमेरात है, आज की रात ही उन्होंने बुलाया था तावीज़ लेने। मैंने मुंह बनाकर कहा, अम्मा आप खामखा उस जाली पीर की बातों में आ रही हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देता है। वो तो कोई चरसी मलंग नजर आता है जिसे इस गांव के लोगों ने पीर और अल्लाह का वली बना रखा है। मेरी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। उसने सख्ती से कहा, पागल ना बन नूरी, किताबें पढ़ पढ़ कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू क्या जाने अल्लाह के वली कैसे होते हैं, और उनके दरबार पर सिर्फ इस गांव से ही लोग नहीं जाते, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर, और वो भी पूरी हो जाती हैं। ना इतने सारे लोग पागल हैं क्या? सिर्फ एक तू ही अक्लमंदी का ठेका लेकर पैदा हुई है। चल शराफत से चलने के लिए तैयार हो जा, वरना जूते मारकर सर गंजा कर दूंगी तेरा। अम्मा से बहस करना फजूल था। उस पीर पर वो अंधा एतकाद करती थी, इसलिए मेरी कोई बात मानने पर हरगिज तैयार नहीं होती। इसलिए गहरी सांस लेकर मैं उठ गई और अंदर से बड़ी चादर ओढ़े बाहर निकल आई। टार्च लेकर हम दोनों करम साईं शाह के दरबार की तरफ जाने लगी। अम्मा की डांट टपट के दौरान ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उधर जाकर देखूं तो कि अरकान का भी कुछ पता चल जाए। हो सकता है वो उधर हो। अरकान की मोहब्बत चुपके से मेरे दिल में घर करने लगी, और 2 दिन से उसको ना देखने की वजह से मैं बेकरार हो रही थी। यही वजह थी कि मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और अम्मा के साथ चल पड़ी। दिसंबर की यख ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी में बहुत इजाफा हो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी, मगर अम्मा तेज़ कदम उठाए जा रही थी, इसलिए मैं भी अपनी रफ्तार तेज़ कर चुकी थी। आखिरकार थोड़ी देर मज़ीद चलने के बाद हम दोनों साईं करम शाह के दरबार के हाथे में पहुँचे। उस रास्ते पर एक ही पुराना दरख्त था। मैंने पुरुमीद नज़रों से उसकी तरफ देखा, शायद अब कुछ पता चल जाए। यह अरकान की एक झलक नजर आई, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मज़ार उस वक्त खामोशी में डूबा था। अंदर 2 जर्द बल्ब जल रहे थे, जिनकी रोशनी में हर चीज़ साए की तरह नजर आ रही थी। मेरा दिल किसी अनजान खदशे से धड़क रहा था। न जाने क्या होने वाला था।
मेरी छठी ही किसी खतरे का इशारा कर रही थी। एक बार तो दिल में आया कि अम्मा को लेकर वापस चली जाऊं, मगर अम्मा भी जिद की पक्की थी। वो कभी भी सुल्तान साईं से मिले बगैर वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करती। इसलिए मजबूरन मैंने दिल मजबूत किया और अम्मा के पीछे मज़ार के अंदर दाखिल हो गई। अम्मा अंदर नहीं गई थी, बस बाहर से ही सलाम भरा, फातिहा पढ़ी और सुल्तान साईं के हुजरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका एक खिदमतगार बाहर निकल आया और अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूरते हुए उसने कहा, आओ बीबी, अंदर आ जाओ। मैंने थूक निकलकर अपने खुश्क हलक को तर किया और अम्मा के पीछे अंदर चली गई। अंदर सुल्तान साईं एक चारपाई पर घाव तकिए से टेक लगाए बैठा हुआ था। अम्मा ने जाकर उसकी कदम बोसी की, मगर मैं सलाम करके ज़रा फासले पर ही रुक गई। सुल्तान साईं के भद्दे होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। उसने अम्मा से कहा, लगता है तुम्हारी छोरी को अदब और अखलाक नाम की किसी चीज़ का नहीं पता। अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा, फिर घबराई हुई आवाज़ में बोली, नहीं साईं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ी सी शर्मीली तबीयत की है, इसीलिए दूर ही रुक गई है। सुल्तान साईं ने मुझे घूरते हुए अपना सर हिलाया। अम्मा उसके इशारे पर ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठ गई तो मुझे भी बैठना पड़ा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर अम्मा ने कहा, साईं तावीज़ देने को बोला था, अगर तैयार हो गया हो तो दे दें, रात गहरी हो रही है और हमें घर भी वापस जाना है। सुल्तान साईं ने सर हिलाकर कहा, हाँ भाई, लिख लिया है तेरा तावीज़, लेकिन अब तुम लोग इस वक्त आ ही गए हो तो चाय पी कर जाओ। हमारे सब लोग और हम खुद भी इस वक्त चाय पिया करते हैं। अम्मा ने मेरे इशारे पर इनकार किया, मगर उसने इतना इसरार किया कि मजबूरन हमें पीनी पड़ी। थोड़ी देर तक उसका एक खिदमतगुजार थाली में चाय के प्याले रख कर ले आया। मैंने एक घूंट से ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन घर जाने की जल्दी में अम्मा जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लग गई थी। मगर आधा प्याला पीने के बाद उसके हाथ से प्याला छूट गया और वो कटे हुए दरख्त की तरह बेसुध होकर गिर पड़ी। मैं चीखते हुए अम्मा के पास आकर उसे झिंझोड़ने लगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर एक बदबूदार रुमाल रख दिया और मेरे होश व हवास साथ छोड़ गए। बेहोश होने से पहले मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो सुल्तान साईं का मेरे करीब आना था। दोबारा होश आया तो मैंने खुद को बंधा हुआ पाया। ज़रा आवाज़ ठिकाने पर आए तो मैंने खुद पर और इर्द गिर्द के माहौल पर गौर किया तो घबरा गई। मैं उस वक्त एक चारपाई से बंधी हुई थी। बंदिशें इतनी सख्त थी कि रस्सियाँ मुझे अपने गोश्त में गड़ी हुई महसूस हुई। मैंने सर उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, बस ज़रा सी कामयाबी मिल सकी। जाने अम्मा कहाँ थी और उस जाली पीर ने चाय में क्या घोल कर पिलाया था हमें। मेरा खदशा सही साबित हो गया था। उसकी नीयत पहले ही मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अम्मा को रोका भी था। मगर अम्मा, उसने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। जहाँ पर मैं उस वक्त थी, उस वक्त तो वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं उस वक्त कहाँ पर और किस जगह पर मौजूद हूँ। मैंने हिल जुल कर खुद को आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की, मगर बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। फिर तंग आकर मैंने ज़ोर ज़ोर से कहा, कोई है? मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा हुआ है? क्या चाहते हो तुम लोग? लेकिन उसके बाद अगले ही लम्हे मैं जो आवाज़ सुन रही थी उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। नूरी, क्या ये तुम हो? ये नसीम आपी की आवाज़ थी। मैं उछल कर रह गई। नसीम आपी, और यहाँ? मैंने जल्दी से पूछा, नसीम आपी, आप कहाँ हैं? क्या ये सचमुच आपकी ही आवाज़ है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? नसीम आपी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, ये मैं ही हूँ नूरी। पिछले एक हफ्ते से मुझे इन जानवरों ने यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। मेरा दिल दुख से भर गया। गोया वो यहीं पर कैद थी और हम लोग तो समझ रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई थी। नसीम आपी ने कहा, अम्मा कहाँ है और कैसी है वो, और तू कैसे यहाँ पर आ गई है? मैंने अपनी दुखी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, बल्कि मुझे भी ये लोग ज़बरदस्ती लेकर आए और मुझे यहाँ पर लाकर बांध दिया है इन लोगों ने। उसी वक्त बाहर से एक आहट हुई थी और फिर उसके बाद किसी ने कोई बटन दबाया
تو سارے کا سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ میں نے تو چندیائی آنکھوں سے دیکھا تو وہیں پر وہ جعلی پیر سلطان سائیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک بڑی مکروہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ شیطانی ارادے کے ساتھ آگے بڑھا اور میری چارپائی پر ایک دم سے جھک گیا۔ میں نے چیخ چیخ کر اس سے کہا، مجھ سے دور رہ مردود، مگر اس پر تو جیسے ہوس کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ساری حدیں پار کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے نفرت اور بے بسی سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا تو غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا اٹھا ہوا وہ ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی فلک شگاف چیخیں وہاں پر گونجنے لگی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ تو ہوا سے ہی کٹ کر نیچے آ کر گر پڑا تھا۔ میں اور آپی ہم دونوں ہی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جعلی پیر اب ہوا میں الٹا لٹک رہا تھا اور اس کی چیخیں سن سن کر اس کے دونوں خدمتگار بھی دوڑے ہوئے وہاں پر آ گئے تھے، مگر وہاں یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ کر وہ دونوں بھی سخت خوف زدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں چند لمحے تک الٹا لٹکنے کے بعد اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو کر نیچے گر پڑا تھا۔ یہ دہشت ناک قسم کا نظارہ دیکھ کر میں تو شدید خوف سے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب مجھے دوبارہ سے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں ہی موجود تھی اور میرے بالکل عین سامنے ارکان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو خوشگوار حیرت محسوس کرتے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارکان نے پھر مجھے بتایا کہ اس جعلی پیر کا خاتمہ اسی نے کیا تھا، جو کہ اپنے اکھڑے مزاج اور روب داب کی وجہ سے وہاں پر نہ صرف سادہ لوہ دیہاتیوں کو بے وقوف بنا رہا تھا، بلکہ وہ تو ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد ارکان جن ذات نے ہی مجھے اور آپی کو اپنے گھر پر پہنچا دیا تھا۔ اماں بھی گھر پر ہی پہنچ چکی تھی۔ ارکان سے جب میں نے اس دعاں ہوتے وجود کے بارے میں پوچھا جو کہ مزار پر موجود تھا، تو اس نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ کچھ باتیں انسانوں کے علم میں نہ ہی آئیں تو یہی بہت بہتر ہوتا ہے۔ شاید وہ سب تمہیں اسی لیے دکھایا گیا تھا تاکہ میں اس وہاں موجود جعلی پیر کی طرف متوجہ ہو کر اس کے گندے قسم کے وجود سے اس پاک مزار کو نجات دلا دوں۔ ان تمام واقعات کو گزرے اب 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اور جن زاد ارکان ہم ایک ساتھ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں۔ میری آپی کی بھی شادی ہو چکی ہے اب، اور وہ اور اماں ارکان کے بارے میں یہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ ارکان کوئی جن زادہ ہے۔ ارکان نے اپنی وہ خوبصورت سی دنیا میرے لیے چھوڑ دی ہے اور اب وہ یہیں پر آ کر میرے پاس رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس مزار پر جاتے ہیں، مگر اب وہ منحوس سلطان سائیں انہیں وہاں بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں میں تو اب یہ مشہور ہو چکا ہے کہ وہ سائیں کرم شاہ کے محافظ جنات سے ڈر کر یہاں سے دور کہیں بھاگ چکا ہے، لیکن یہ بات تو صرف میں، میری آپی نسیم اور ارکان جن زیادہ ہی جانتے ہیں کہ یہ زمین اب اس جعلی پیر کے ناپاک وجود کے بوجھ سے بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔